کہ ہم سیکھ رہے ہیں پھلوں کے طلب سے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے حاضہ شاخ میں خداوند یسوع کی روح. بولو حاضہ شاخ میں پھر بولے حاضہ شاخ میں خداوند یسوع کی روح. آئیے میرے ساتھ نکالیے یوحنا رسول کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 1 سے 15 آیت کا مطالعہ کریں گے. شروع کرتے ہیں کلام حق کا پڑھنا یسوع کے داد نام سے. سب کہیں آمین. فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا. اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جائے؟ کلام میں لکھا ہے. کیوں؟ کیسے دیکھے گا وہ؟ یسوع مسیح نے یہ بتا دیا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ. تو نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم جسم سے پیدا ہوئے ہیں تو دوبارہ ہمیں روح سے پیدا ہونا ضرور ہے، کیونکہ جسم کے کام ظاہر ہے، حرام کاری، بت پرستی، نپاکیاں، شہوت پرستی جسمانی خدا کے تابع نہیں ہو سکتے، وہ خدا کے دشمن ہیں. اس لیے جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے. تو جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو، روح سے نہ پیدا ہو، وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا. پر وہ نیکودیمس جو ہے وہ یہودیوں کے عبادت خانے کا سردار تھا. شریعت اسے زبانی یاد تھی، کلام اسے آتا تھا، لیکن اسے اس بات کا نہیں پتا تھا کہ نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. تو اسی طرح بہت سے لوگوں کو بہت کلام آتا ہے پر ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جب تک ہم نئے سرے سے پیدا نہ ہوں گے ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. تو یسوع اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روح سے پیدا ہونا کیا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی، یہودیوں کا سردار ہو کر اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اور میرے عزیزو پھر یسوع نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے. اس نے کہا، تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے. جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے. نیکودیمس نے جواب میں اس سے کہا، یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ تو استاد آدمی ہے، تو ان باتوں کو نہیں جانتا. معافی کے ساتھ آج بھی بہت سے لوگ بڑے ہیں، استاد تو بہت بڑے ہیں، اور وہ اسی نیکودیمس کی طرح ہیں، وہ ان باتوں کو نہیں جانتے. ہمیں ان باتوں کو جاننے کی ضرورت ہے. اور میرے عزیزو انہوں نے کہا جو کہ روح سے پیدا ہوا ہے ایسا ہی ہے. نیکودیمس نے جواب میں اس سے کہا، یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، بنی اسرائیل کا استاد ہو کر ان باتوں کو نہیں جانتا. میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں، اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی
देते हैं और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। बड़े बड़े जो उस्ताद हैं जो उनके इस्राइल के थे, वो यीशु मसीह की गवाही को कबूल, और मेरे जो माफी के साथ आज भी कई ऐसे आलम हैं जो वैसे ही हैं, वो असल बात को कबूल नहीं करते, जबकि करना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन ये है कि आज भी ऐसे सरदार हैं, ऐसे उस्ताद हैं जो कलाम की दुरुस्त तालीम नहीं देते, और ये भी ऐसे ही करते हैं। और हमें कलाम की दुरुस्त तालीम को जानना है, दुरुस्त तालीम को समझना है। और आगे फिर क्या लिखा है, आगे जाके हम गौर करते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा, जो हम जानते हैं हम उसको वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे जमीन की बातें कही और तुमने यकीन ना किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन करोगे। और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। अब यीशु मसीह ने मिसाल दी है उसको, उसकी शरीयत की, अब उसको समझ आई है कि जिस तरह मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, इस तरह इब्ने आदम यीशु मसीह को भी सलीब पर चढ़ाया जाए। वो यीशु मसीह का पेश खैमा था, जिसने सांप के डसे हुए ने देखा था वो निजात पा गए थे, बच गए थे उन सांपों से, उस तकलीफ से। और आज जो यीशु मसीह को देखता है वो अपने गुनाहों से रहाई पाता है, गुनाहों से निजात। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो मुझे देखेगा, अब तुम्हें मुझे देखने की जरूरत है, मेरे पीछे आने की जरूरत है, मुझे कबूल करने की जरूरत है। तो हमने पिछले मुतालिया में क्या सीखा था, हमने देखा था कि हम बतौर मसीही जरूरी है कि फलदार शाख होना बड़ा जरूरी है। हमारा लाजम है कि शाखों में वही फितरत हो जो अंगूर के दरख्त यानी यीशु की है। यीशु की फितरत हासिल करने के लिए जरूरी है कि हमने क्या करना है, नए सिरे से। आज हमने क्या, यीशु की फितरत, यीशु की नेचर, यीशु के किरदार को हासिल करने के लिए हमने नए सिरे से पैदा हुआ। अगर नए सिरे से पैदा नहीं होंगे तो हम यीशु की फितरत को हासिल नहीं कर सकते, यीशु हमारे दिलों में सुकूनत नहीं कर सकता। तो मेरे अजीजों, जो दिल से मुराद क्या है, कौन सा दिल है? ये जो गोश्त का दिल बना हुआ है, ये दिल है जो बदन में खून को पंप करता है, बल्कि इससे मुराद हमारी शख्सियत का मरकज है। ये हमारा दिल नहीं है, इससे मुराद क्या है, जो हमारी शख्सियत का मरकज है, जो हमारा किरदार है, जो हमारी ख्वाहिशात, हमारे इरादे, हमारे ख्यालात, हमारे अल्फाज, हमारे काम को कंट्रोल करता है, वो वाला दिल। आमीन आमीन। जब यीशु हमारे दिल में आता है तो उसका रूह हमारी फितरत को बदल देता है। अगर यीशु दिल में आएगा तो उसका रूह हमारी फितरत को बदलेगा, फिर हम जमीनी नहीं रहेंगे, हम आसमानी बन जाएंगे। अगर यीशु हमारे दिल में ना आया तो हमारी फितरत नहीं बदलनी। इसलिए तो जनाब पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब की 17 आयत में कहा है, क्या कहा है, 5 बाब की 17 आयत में हम पढ़ते हैं खुदा के मुकद्दस कलाम में से, और यहाँ पर बड़ा वाज़ेह लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। सबसे पहले किसमें है? मसीह में। यीशु मसीह में है तो वो नया मखलूक है। अगर दुनिया में है, अपने आप में है, या किसी और में है तो वो नया मखलूक। सबसे पहले हमें यीशु मसीह में होना जरूर है। जो यीशु मसीह में है वो नया मखलूक है। फिर उसके अंदर से पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं होगी, फिर पुरानी चीजें जाएंगी, फिर नहीं आएंगी। यीशु मसीह हमारे अंदर से पुरानी चीजों को निकालेंगे और नई चीजें हमारे अंदर दाखिल होंगी। और यीशु के रूह का घर बनने के लिए तैयारी करनी पड़ती है ताकि हम फलदार शाख बन सके। इसके लिए सबसे पहली तैयारी नंबर 1 जरूर है कि अपने गुनाहों पर गम करें।
किस पर गम करना है? ये लाजमी है। कोई गुनाह करता है अपने गुनाह पर गम करता है। अगर किसी के अजीज की जैसे डेथ हो जाती है, उससे जुदा हो जाता है, उस पर गम करते हैं, अपने गुनाहों पर गम नहीं करते। आप में से कितने से गलती हो जाए, उस गलती पर वो गम कर रहा हो कि मैंने क्यों ऐसी बात कर दी, मैंने क्यों गुनाह कर दिया, मैंने क्यों नशा कर दिया, मैं क्यों इस तरह का हूं। अपने ऊपर अफसोस करना, ऐसे कामों के लिए गम करना जो खुदा के कलाम के मुताबिक ना हो, जो खुदा को रंजीदा करे, जिससे खुदा नाराज हो, ऐसे कामों पर गम करना। जब ऐसे कामों पर हम गम करना शुरू करेंगे, फिर हम नए सिरे से पैदा होंगे। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, कहते हैं कि दुनिया का गम करते हैं, दुनिया का गम बहुत करते हैं। इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, उसी तरह मैं बड़ा गमगीन हूँ, हर किसी के आगे रोते हैं। बहन भाइयों ने कोई बात हो गई तो उसने मुझे ऐसे दुख दिया, उसने मियां बीवी में बात हो गई, इन पर बड़ा गम करते हैं। ये वाला गम मौत पैदा करता है, दुनिया का गम। और खुदा परस्ती का गम जो है वो निजात पैदा करता है। जो हकीकी गम है वो ये है कि जब हम महसूस करते हैं कि हमने अपने प्यार करने वाले खुदावंद को रंजीदा किया है, तो पौलुस रसूल इसे वाकई ये कहते हैं कि ये खुदा परस्ती का गम। इतनों ने इस बात पर गम किया कि मैंने यीशु को नाराज कर दिया यार, अपने इस काम से, अपनी इस बात से। तो फिर वो शख्स जो है ना, वो नए सिरे से पैदा हुआ है। इस किस्म का गम जो आपके अंदर नफरतें पैदा करता है, उसको निकालें। नंबर 2, जरूर है कि हम अपने गुनाह का खुदा के सामने इकरार करें। जिसपे खाली गम करने से कुछ नहीं होगा, फिर उसका इकरार करें। किसके सामने? खुदा के सामने जाकर। क्योंकि रंजीदा किसको किया है? खुदा। तो खुदा के हम एक दूसरे बहन भाई को कह देंगे, कई इतने अपना दिखाते हैं कि कहता किसी का पाँव लग देना, गुजर जाए, हाथ लग जाए, कहेंगे सॉरी। अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है अखलाकी तौर पर। तो खुदा के खिलाफ इतने गुनाह करके खुदा को नहीं चोरी करते, वहां पर कोई इकरार नहीं करते, कितने दिन वैसे ही रहते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि आपके अंदर यीशु मसीह का रूह आए, तो फिर ही आएगा जब आप अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। आप में से कितने उसी वक्त इकरार कर लेते कि मेरी गलती है? शाबाश। नहीं होती गलती, वही माफी मांगेगा। इल्जाम लगाते हैं, जैसे आदम और हवा ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया, अपनी गलती को नहीं माना। मुकद्दस दाऊद ने क्या किया, जब उनको गुनाह का पता चल गया, उन्होंने फौरी इकरार कर दिया और बहाल हो गए। यहूदा अस्करियोती ने क्या किया, गलती की, खुदकशी करके मर गया। लेकिन पतरस ने गलती की, उसने 3 दफा इनकार किया और 3 दफा इकरार किया अपनी गलती का। क्या हम करते? अगर आप पहला यूहन्ना 1:9 का मुताला करें तो वहां लिखा है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। पहला यूहन्ना का खत 1:9 में लिखा है। अगर हम इकरार करें तो शर्त क्या है? अपने गुनाह को माने, उसका पर गम करें, उसका एहसास हो आपको कि मैंने वाकई गलत किया है। जब आपको ऐसा हो तो ये खुदा का रूह हमें एहसास दिलाता है, तो फिर वो हमें माफ करता है। अगर अदरवाइज उसने माफ नहीं करना। अक्सर लोग अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश में हैं और वो कई दफा इस तरह से छुपाते हैं और वो कामयाब नहीं होते। एक मिसाल है, साउथ अफ्रीका का एक बंदा था, उसको कोड़ हो गया, इधर करके कोड़ का छोटा सा निशान जाहिर हुआ। उसका इलाज करवाने की बजाय उसने कहा लोगों को पता चल जाएगा तो ये तो मुझे बाहर निकाल देंगे, मेरे से कोई मिलेगा नहीं। उसने वहां पर कोई चीज लगा के, वहां पर उसने ना कोई चीज करवाई, जैसे जिसम पे खुदकारी नहीं करवाते, मुख्तलिफ चीजें टैटू करवाते हैं, उसने इस तरह की चीज उसके ऊपर बना ली ताकि लोगों को नजर ना आए। थोड़ी देर उसने छुपाया, फिर उसके पूरे बदन पर वो सारा, उसने तो फैलना था, फैल गया, यहाँ तक कि उसके मुंह तक फैल गया। फिर उसके लिए मुश्किल हो गया।
हम भी ऐसा करते हैं, जब गुनाह छोटा होता है उस वक्त उसका इकरार नहीं करते, फिर वो फैलते फैलते इतना फैल जाता है, हमारे बच्चों पर उसके बाद असरात आना शुरू हो जाते हैं, हमारे कारोबार पर, हमारे घरों से लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती। लेकिन लड़ाइयाँ ना घरों से खत्म होती, उनके अंदर गुनाह होते हैं, वो अपनी गलती खताओं का इकरार नहीं करते, फिर एक दूसरे के खिलाफ ग्रज से भरे रहते हैं, गुस्से से भरे रहते हैं, जब मौका मिलता है फिर उसको उगल देते हैं। ये इसकी बड़ी लड़ाई झगड़े होने की मेन वजह ये है। फिर वो कोड़ की तरह फैल जाते हैं, फिर जुदाइयां पैदा हो जाती है। तो इसलिए जब छोटी सी गलती है उसी वक्त उसको क्लियर करने की कोशिश किया करो। जैसे उसने अपनी बीमारी को क्या कर लिया, बढ़ा लिया उसको छुपाने से, तो मेरे अजीजों ज़कई ने नहीं छुपाया। ज़कई ने क्या किया, उसके बरक्स वो दरख्त पर चढ़ गया, यीशु ने कहा नीचे उतर जा, मुझे तेरे घर जाना। जब घर गया उसने गुनाह छुपाया कि सारी चीजें निकाल के बाहर रख दी, उसने निकाल के बाहर रख दिया। उसने कहा जिसका 2 गुना लिया उसको 4 गुना वापस करता हूँ और बाकी मेरा माल गरीबों में तकसीम कर दो। यीशु ने कहा आज इस घर में निजात आई है, और यीशु मसीह उसके दिल के अंदर आ गया। हम क्या निकाल के रखते हैं, हम तो छिपाते ही रहते हैं, बहुत से लोग छिपाते हैं। और मिसाल की किताब में जो कोई अपने गुनाहों को छुपाएगा कामयाब ना होगा, और जो उनका इकरार करेगा और उनको तर्क करेगा वो कामयाब होगा। इसीलिए लोग नाकाम जिंदगियां बसर करते हैं, आगे उनके बच्चे भी नाकाम होते हैं, आने वाली नस्लें भी आगे क्या होती जाती हैं, नाकाम होती जा रही हैं। वजह यह है कि हम अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का इकरार नहीं करते, तो कैसे खुदा का रूह हमारे अंदर आकर बस सकता है। हमने तो उसको जीता किया, गुनाहों पर गम करना है, उनका इकरार करना है, उनको अपनी जिंदगी से खारिज करना है। और उसने कह दिया कि मैं ऐसा करता हूं। जब हम खुदा के दूर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो उनके साथ जिन पर हमने जुल्म किया अपने तल्लुकात दुरुस्त कर लेते हैं, तो खुदा हमें माफ कर देता है। लेकिन हमें माफी सिर्फ इसी बुनियाद पर मिलती है कि यीशु ने सलीब पर जान दी। माफी मिलने की बुनियाद एक ही है, और वो है यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी। तो फिर आपके गुनाह माफ होते हैं और आपकी सजा खत्म हो जाती है, और आप अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं, आपको माफी मिलती है। ये हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे दिल में खुदा परस्ती का गम है। जिसके दिल में खुदा परस्ती का गम है वही ऐसा कर सकता है। दूसरा बंदा ऐसा अगर कोई किसी को माफ नहीं कर रहा, इकरार नहीं कर रहा, समझो उसके अंदर खुदा परस्ती का कोई गम नहीं। वो उसी शख्स की तरह जो अफ्रीका का बंदा है, वो अपने गुनाहों को, गलतियों को छुपाता रहता है, और उन्होंने बढ़ जाना, तो फिर जब बढ़ के फिर जाहिर हो जाना, उन्हें छुपा नहीं सकता कोई गुनाहों को, ये पता चल ही जाता है। अगर हम चोरी की हुई ऐसी अशिया लुटा भी दें फिर भी हम चोर हैं। अगर किसी की चोरी किया, उसकी चीजें लुटा दें, फिर भी हम चोर हैं। कैसे चोर हैं? क्योंकि हमने इकरार नहीं किया। खुदा के सामने जाके उसका इकरार करना बहुत, उस पर गम करना बहुत जरूरी है। खुदा हमारे जुर्म को मिटा सकता है क्योंकि यीशु ने हमारे लिए सलीब पर जान दिया। हम खुद ब खुद वो चीज वापस करके, अब मैंने किसी की चोरी किया, उसको चीज वापस कर दी है, ठीक हो गया, तो हम सुरक्षित नहीं हुए। खुदा के पास भी जाना है, खुदा मैंने ये गलत काम किया था, मैंने ये चोरी की थी, क्योंकि हुक्म किसका तोड़ा है? चोरी ना करना किसने कहा था? खुदा ने कहा था चोरी। हम पता नहीं चोरी चोरी किसी के खिलाफ क्या क्या बातें करते हैं, चोरी चोरी बड़ी बातें करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। क्या उनकी माफी मांगते हैं और उसको माफ करते हैं? उसके भी मुजरिम है जिसके खिलाफ चोरी बातें कर रहे हैं, उसको सामने उठाओ, उसे कहो भाई ये बातों का मुझे इतराज है, यहाँ से अपने आप को क्या कर लो, दुरुस्त कर लो, या उसके लिए दुआ करो। तो हम चोरी चोरी छुप छुप के एक दूसरे के खिलाफ डर डर के, तो कहते हैं दसी ना मैं गल की थी। कई दफा माफी के साथ मेरे सामने लोग बातें, मैं कहता हूँ माफ करना ना करो, मैं बड़ा मना करता हूँ, फिर भी करते, फिर कहते हैं बताना ना, तो फिर मैं तो काउंसलिंग करता हूँ, कलाम में से उनको समझाता हूँ कि ये गलत बात है। आमीन आमीन। तो तीसरे नंबर पे जो बात है, पहली पे आपने हमने क्या बात सीखी थी? नंबर 1 पे क्या सीखा है? जरूर है कि हम अपने गुनाहों पर गम करें। दूसरी बात क्या सीखी है? जरूर है कि अपने गुनाहों का खुदा के सामने इकरार करें।
आपको पता है सौल नबी क्यों कामयाब नहीं हुआ था? उसने अपने गुनाहों का इकरार सैमुअल के सामने तो कर लिया था, खुदा के सामने नहीं किया। कभी कभी हम इंसानों के सामने अपनी गलतियों का इकरार कर लेते हैं पर खुदा के सामने नहीं करते, ये जरूरी है। तीसरी बात है, जरूर है कि हम अपने गुनाहों को तर्क करें, उन्हें छोड़े भी ना। ये नहीं इधर माफी मांगी जाइए, इधर फिर गुनाह करी जाइए, इधर से माफी मांगे, उधर से फिर गुनाह करते जाए, ओहो कम बार बार ही करते जाइए। नहीं नहीं नहीं, क्या करना चाहिए? फिर गुनाहों को, अपनी इन बुरी आदत को तर्क करना चाहिए, इन्हें छोड़ना भी चाहिए। ये काफी नहीं है कि हम खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगते रहें और फिर उन्हीं का इर्तिकाब करते रहें। इमसाल 28:13 में लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। ये खुदा के कलाम में लिखा है। अगर आप चाहते हैं रहम मंगी जाओगे तो रहम ऐसे नहीं होना, खुदा रहम कर, मेरे बच्चों पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। रहम कैसे होगा? अपने गुनाहों का इकरार करें, उनको तर्क करें, तो आपको रहम मांगना भी नहीं पड़ेगा, खुद आपकी जिंदगियों पर रहम हो जाएगा। बाद लोग अपने गुनाहों का इकरार तो करते हैं लेकिन हकीकत में उन्हें तर्क नहीं करते और उनको तर्क करने के लिए तैयार नहीं होते। बिलाशुबा हमें हमेशा दुआ करनी चाहिए। क्या दुआ करते हैं? दुआ रबानी, जब आप मत्ती 6:12 पढ़ते तो वहां क्या दुआ करते हो? क्या कहते हो वहां पर? जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। दुआ पढ़ ली, कर्ज कीते जी माफ करें। कर्ज का मतलब ही गुनाह है, कसूर है। कितने जब ये दुआ पढ़ते हैं उसको याद आता है कि यार मैंने तो कसूर किसी के माफ किए नहीं, बड़े 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 मेरे गुनाह किए, मैं इन्हों कैसे माफ कर, मैं नहीं माफ करना, मैं नहीं ये नाल रहना, ਅਸੀਂ नहीं इकट्ठे रहना, ਅਸੀਂ वखरिया रहना है। कितने हम ऐसे दुआ रबानी पढ़ते हैं रोज, जब दुआ करते हैं, पढ़ते हैं ना, आमीन, तो कसूर माफ करते हैं दूसरों को। ये बड़ा जरूरी है, इसलिए कि हम कामयाबी तक कभी नहीं पहुंचेंगे अगर हम ऐसा नहीं करते। लेकिन ये उन बातों को जो खुदा को रंजीदा करती हैं आदतन करते रहते हैं। फर्क क्या है? अगर आप रोमियो 6 और उसकी 14 आयत पढ़े, रोमियो 6 पढ़े, जो तो क्या वहां पर लिखा है? वहां नसीहत की गई है। पढ़ेंगे सेल साहब, रोमियो 6:14 है जी। मैं खुद ही पढ़ते जाऊंगा, आपको मौका देते। इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। बस क्या हुआ, क्या हम इसके लिए गुनाह करें कि शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हैं? आमीन। हरगिज़ नहीं। गुनाह को अपना आका ना बनाएं। कई लोग ना गुनाह को आका बनाया हुआ है और खुद गुनाह के गुलाम है। और जो आका है वो 24 घंटे, जो गुलाम है 24 घंटे अपने आका को देखता रहता है। बहुत से लोगों ने गुनाह को अपना आका बनाया हुआ है और 24 घंटे गुनाह करते रहते हैं, देखते रहते हैं उसकी तरफ। लेकिन पहला यूहन्ना 3:9 में लिखा है, यानी वो गुनाह नहीं करता रहता। ऐसा शख्स जो है वो गुनाह नहीं करता रहता। कौन सा? जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। इसका मतलब यही है कि वो गुनाह नहीं करता रहता, वो गुनाह कर ही नहीं सकता। गुनाह उससे पहले जो हुए हैं वो लगातार गुनाह करता ही नहीं रहता। फिर वो गुनाहों को पहले गुस्सा करता था, फिर गुस्सा छोड़ देता, पहले लड़ाइयां करता था, फिर लड़ाइयों को छोड़ता, पहले झूठ बोलता था, फिर झूठ बोलता ही नहीं रहता। ये मतलब है कि जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह कर नहीं सकता, यानी कि वो फिर करता नहीं रहता। नंबर 4, जरूर है कि हम माफी के लिए खुदा पर भरोसा करें। अगर आपने माफ कर दिया तो फिर खुदा पर भरोसा भी करें। कई लोग माफ करके भी ना फिर अपने नहीं मैं बड़ी गलती कर रहा, नहीं मैं बड़ा जुल्म कर रहा, फिर उन्हें याद करके खुदा के खादम थे, उनसे गलती हो गई और उन्होंने गलती की माफी भी मांग ली। और क्या हुआ? जब गलती की माफी भी मांग ली तो उन्होंने कहीं कलाम सुनाने जाना था तो शैतान ने कहा तुझे कलाम नहीं सुना सकता, तूने तो गुनाह किया है। वो और परेशान हो गया। वो करते 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 दुआ में ठहर गया कि खुदा मैं किस पास से कर लूं, मैं तो गुनाह किया है, मैं उन कलाम नहीं जाके सुना सकता। तो फिर खुदा ने कहा
कि तुझे पता नहीं है जो यूहन्ना का हवाला मैंने अभी आपको पढ़ाया है, क्या लिखा है? जब तू अपने गुनाहों का इकरार करेगा तो वो तेरे गुनाह को माफ करने में सच्चा और आदल है। तेरे गुनाह, तेरी गलतियां, तेरे कसूर तो माफ हो गए हैं। आपको तेरे गुनाह माफ हो गए हैं। तो फिर उसने जाकर वहां कलाम सुनाया और बड़े मौजज़े हुए। कई लोगों को ये यकीन ही नहीं आता कि मेरी गलती माफ होगी। वो बार बार याद करके रोज जो दुआ करके रोएंगे, खुदा मैंने ये किया, खुदा मैंने वो किया। खुदा उसके कहते हैं तुझे पता नहीं है कि मेरा जो खून है, मेरे बेटे यीशु का खून, वो गुनाहों को मिटा देता। फिर कभी मैं नहीं याद करता, तू को याद कर रहा है। होता है कि नहीं ऐसा? बताएं जरा। पर तू दुआ कर लगा, तू क्या गुनाह किया? तू कलाम पढ़ा नाल ही बंदा ढिला जा हो जाता है। हमने को क्या गलतियां होती हैं कलाम में। आज हमने सीख लिया कि जब हम इकरार करते हैं, अपने गुनाहों पर गम करते हैं, हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं और खुदा का रूह हमारे अंदर आ जाता है। जरूर है कि हम क्या करें, खुदा पर भरोसा रखें कि मेरे गुनाह माफ हो गए। पहला गुनाह, एक बात जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो गुनाहों का इकरार करता है उसके गुनाह माफ हो जाते हैं और खुदा हमें माफ करके क्या कर देता है जी? अपने कलाम से पाक कर देता है। और फिर वो गुनाह हमने जिसका इकरार कर लिया वो दोबारा हमें तंग नहीं कर सकता। आपने तो उसको तर्क कर दिया और हम पर तो खुदा की रहमत होगी यार। हालेलुया। जब गुनाह माफ हो जाते हैं, खुदा का रहम हमारे ऊपर हो जाता है और हमारे रुके हुए काम जारी हो जाते हैं, हमारी रुकी हुई बरकतें जारी हो जाती हैं। फिर अगर हमने ऐसा न किया तो फिर हमारी बरकतें लाजमी रुकेंगी। फिर हमें समझ भी नहीं आती, हम दुआ भी करते हैं, दायकी भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हालात तब्दील नहीं हो रहे, हमारे घर से ऐसी लड़ाई झगड़े नहीं खत्म हो रहे, क्योंकि हम तो दुआ करते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, संडे को इबादत होती है, लेकिन उसकी वजह ये होती है कि हमने ये वाले काम किए नहीं होते। ये काम करें, ये बड़ा जरूरी है, गुनाहों को तर्क करें। तो इसी तरह हम देखते हैं, जैसे मिसाल 28:13 में हमने पढ़ा कि जो भी अपने गुनाहों को छिपाएगा कामयाब नहीं हो सकता, और जो उनका इकरार करेगा वो कामयाब होगा और उस पर खुदा की रहमत भी होगी। तो अगर आप गौर करें क्यों ऐसा होता है, यीशु ही सिर्फ कर सकता है और नहीं कर सकता। अगर आप यशायाह नबी का सीफा उसका 53 बाब और उसकी 4 से 6 आयत का मुताला करें तो वहां लिखा है, हालांकि वो हमारे गुनाहों के लिए घायल हुआ और हमारी बदकिरदारी के बाहिस कुचला गया और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई और उसी के मार खाने से मैंने शिफा पाई। तो फिर भी हम बीमारियों के साथ जिंदगी बसर करें तो क्यों करें? जब हमें करने की क्या जरूरत है? किसी बड़े चैनल पे जाके दुआ करवाने की जरूरत है? मैं कहता हूँ करवाओ, कोई बात नहीं। बड़े पादरी को बुलाकर दुआ करने की जरूरत है। अगर हमने अपनी गलतियों गुनाहों का इकरार कर लिया, दुनिया का जौन सा मर्जी बड़ा सा बड़े पात्र आकर आप दुआ कर ले, आपकी बीमारी खत्म, वो वहां से खत्म हो गई नई सूरत अख्तियार। पहले टांग में दर्द होती, फिर वो वहां से खत्म होकर कमर में हो जाएगी, कमर को छोड़ के सार में शुरू हो जाएगी, कुछ नई जगहों पर वो अपना रास्ता निकाल लेगी। जब तक हम उस गुनाह को वजह को दूर नहीं करेंगे वो बीमारी दूर। आपने शफा कैसे पाई है? पास्टर ने या किसी खादम ने मार नहीं खाई। मार किसने खाई है? यीशु ने। घायल कौन हुआ है? यीशु। कुचला कौन गया है? यीशु। तो जो यीशु ने असूल बताया, जो कलाम के असूल हैं, इन पर अमल करके हम खुद भी इकरार कर लेंगे तो हम शिफा पा जाएंगे। हालेलुया। हमें बीमारियों के साथ, हमें टेंशनों के साथ, हमें गुनाहों के साथ जिंदगी बसर करने की, मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा जो गंदगी है वो हमारे गुनाह है। जो जिस्म पर मैल होती है, ये तो हमारे जिस्म को खराब करती है, तो गुनाह हमारी रूह को खराब करते हैं। और रूह किसने दी है? खुदा ने। और गंदी रूह खुदा ने नहीं ली। अपनी रूह की सफाई करें। जब अपनी गलतियों का, गुनाहों का इकरार कर देते हैं, दूसरों को माफ कर देते हैं और फिर आपकी रूह पाक हो जाती है। फिर जब आपकी रूह पाक होती है और खुदा का पाक रूह आपके ऊपर आकर ठहर जाता है और वो आपकी हर बुरी रवच को, हर एक चीज को क्या कर लेता है? कंट्रोल। इसलिए हमें पाक रूह की जरूरत है। अगर हमने तौबा कर दी है, बपतिस्मा ले लिया, हम कलाम पढ़ते हैं, हम दुआएं करते हैं, हम रोजे रखते हैं, अगर हमने ये वाले 4 काम ना किए, अपने गुनाहों को तर्क ना किया, नए सिरे से पैदा ना हुए, अपने गुनाहों पर गम ना किया
और अपनी मुआफी के लिए खुदा पर भरोसा ना किया तो कुछ नहीं होने वाला। जैसे हमारी जिंदगी है वैसे के कोई फल नहीं आना रूह का। फल तभी आएगा जब हम ये 4 काम जो मैंने आपको बता रहा हूँ इसको करेंगे, फिर आपके अंदर रूह का फल आएगा। यीशु हमारे लिए हुआ। अगर हम अपने गुनाहों पर अफसोस करते, खुदा के सामने उसका इकरार करते और उन्हें सचमुच तरक करना चाहते हैं तो हम उनकी मुआफी के लिए इल्तिजा कर सकते हैं। और खुदा अपना वादा नहीं तोड़ सकता। वो हमें इतना प्यार करता है कि उसने हमें हमारे गुनाहों से बचाने के लिए अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को भेज दिया है। हालेलुया। और खुदा अपने वादे से नहीं मुकरता। खुदा उतना ही प्यार करता है। वो गुनाहगारों के लिए आया है और गुनाहगारों से प्यार करता है। वो गुनाहगारों को बुलाता है कि आओ और ये करो। बकौल यूहन्ना सुन के वो अपना वादा पूरा करके हमें मुआफ कर देगा। बस हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। बहुत से लोगों को उस पर ईमान ही नहीं है, उनका भरोसा ही नहीं है। ये बड़ा जरूरी है। बस हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए कि जब हमने उससे मुआफी मांगी तो उसने हमें माफ कर दिया है और उसका पाक रूह हमें सुकूनत करने के लिए आ गया है। प्रेज़ गॉड। ये ईमान होना चाहिए। अगर हमारा ये ईमान ना हुआ कि उसने मुझे माफ कर दिया है और पाक रूह हमारे अंदर आ चुका, फिर कुछ भी नहीं मिलना। फिर एमी हमने पता नहीं क्या किया है, कोई इकरार नहीं किया। ये बड़ा जरूरी है कि हम ऐसा करें। फिर ये बात आपको तजर्बा होगा। पौलुस रसूल ने रोमियो 8:16 में ये बात कही है। ये आपको तजर्बा होगा। वो खुद हमारे मुंह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फरजांद हैं। हालेलुया। इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा मुकाम, इतनी बड़ी बरकत कि हम खुदा के फरजांद हैं। फिर रूह कुदस गवाही देगा। और कितनों को यकीन है कि आप खुदा के बेटे हैं? है आपको यकीन कि नहीं? डॉक्टर के हाथ खड़ा कर रहे हैं। है यकीन? तो फिर हम गरीब क्यों हैं? फिर हम परेशान क्यों रहते हैं? फिर बीमारियों में क्यों रहते हैं? फिर टेंशनों में क्यों रहते हैं? खुदा के कोई बाप कहता है कि मेरा बेटा बीमार रहे, फिर खुशहाली क्यों नहीं आ रही? उसकी वजह यह है हमने इकरार तो कर लिया, हमारा उस तौर पर उन चीजों पर ईमान ही नहीं है कि खुदा हमें मुहैया करेगा, हमारे बच्चों को ठीक कर देगा, हमें ठीक कर देगा। बस हम छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेने सीखी है। ये कर देगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि फिर जब आप उसके बेटे बेटियां बने तो फिर इसका इत्मीनान भी जरूरी है, फिर ईमान भी जरूरी है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। खाली इकरार करना काफी नहीं है, नहीं, ये ना काफी है। उसके आगे ईमान रखना, भरोसा रखना। अब जब आप कह रहे हैं मैंने यीशु के मार खाने से जो पाप आ रही है वो मेरी खताओं के लिए गार हुआ, मेरी बदकिरदारी इसके बाहर कुचला गया, मैं एक जगह पर गया और मेरे अंदर खुदा ने ये आयत डाली। वो लड़की 10 दिन से कोमा में थी, डॉक्टर ने कहा इसकी डेथ हो गई है। और जैसे मैंने ये आयत उस पर बोली, यकीन माने वो लड़की सीधी खड़ी हो गई। हालेलुया। और डॉक्टर हैरान हो गए, प्रोफेसर भी वहां पर बैठे थे, कहते ये मिरेकल है, ये खुदा ने, उन्होंने वहां बैठी गवाही दी। तो मैंने क्या किया? मैंने ईमान रखा, मैंने उनके घर वालों का ईमान तैयार किया। आज अपने बच्चों के लिए, बीवी अपने शोहर के लिए ईमान रखे, ये खुदा का बेटा है, ये तब्दील हो चुका है। और शोहर जो है बीवी के लिए ईमान रखे, अपने बच्चों के लिए ये ईमान रखो, मेरे बच्चे खुदा के बेटे बेटियां हैं, ये क्लास में जाएंगे, ये फर्स्ट आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने बच्चों के लिए टेंशन है, मेरा बच्चा सही पढ़ता नहीं जी, ये पता नहीं कैसे पढ़ेगा, ये क्या होगा जी, ये वैसे करता है। ईमान रखो, ईमान से आपके घर में तब्दीली आएगी, आपकी जिंदगी में तब्दीली आएगी, आपके सोर्स ऑफ इनकम में तब्दीली आएगी। ये भी गुनाह है ईमान ना रखना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। उसको खुदा पसंद ही नहीं करता। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता कि खुदा हमें पसंद कर ले। तो वो तो आपको पसंद ही नहीं कर रहा, तो आपको बरकतें कहां से देगा? वो तो आपको छोड़ चुका है। जिसको आप पसंद नहीं करते उससे बात करेंगे, वो बात करना भी चाहे आप मुस्तरफ कर लेंगे। अभी तो नहीं जिस आया में लिखा तुम दुआ पर दुआ करोगे मैं नहीं सुनूंगा, तुम्हारी नई ईदों से, तुम्हारे नए चांदों से, तुम्हारे हदियों से, तुम्हारी दायकियों से मुझे नफरत है। मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया तुम्हें बचा ना सकूं, मेरा कान भारी नहीं हो गया सुन ना सकूं। तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हारे और मेरे दरमियान में क्या है? दीवार खड़ी। आपने इकरार कर दिया, सब कुछ कर दिया, आगे जाकर ईमान ही नहीं रखा तो कुछ भी नहीं होना।
ये जरूरी है। मेरे अपने बिजनेस के लिए ईमान रखें, अपने बच्चों के लिए ईमान रखें। मेरे बच्चे बहुत पढ़ लिखे हैं, बेशक आपकी जेब में एक पैसा नहीं पाता, आप ईमान रखें, बाकी सब कुछ खुदा मुहैया कर देगा। हालेलुया। जैसे अब्राहम के पास क्या था? कुछ भी नहीं था, और वो पहाड़ पर मेंढा में आ गया, उसने कहा वो यहोवा यरी है। उसने ईमान रखा, जो अब्राहम के लिए यहोवा यरी था वो आज मेरे और आपके लिए भी यहोवा यरी है। हालेलुया। उसको यहोवा यरी के रूप में देखें, उस पर ईमान रखें। वो शिफा मुहैया करेगा, वो जिंदगी मुहैया करेगा, वो ऐसी जिंदगी मुहैया करेगा जो कभी खत्म ना होने वाली है। हालेलुया। वो कसरत की जिंदगी देगा उनको जो ईमान रखते हैं। वो गुनाहों को माफ करेगा, वो मौत से निकाल कर जिंदगी में दाखिल करेगा, वो कब्रों से निकाल कर जिंदा कर देगा। हम कब्रों से निकल कर हवा में उठकर उसका क्या करेंगे? ये हमारा ईमान होना चाहिए। ये करेंगे तो सब कुछ होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होने वाला। आमीन आमीन। उस वक्त हमें ये तसल्ली मिल जाती है जब हमारे गुनाह माफ हो चुके हैं और उन्हें अब तक फिर कभी याद नहीं किया जाएगा। खुदा माफ कर लेता है और वो याद नहीं करता। असी एक दूसरे को माफ करके उन्हें फिर याद करने, फिर जो गल करे फिर मुड्डों छुड्डो शुरू होने, तू इंज किया, तू इंज किया, तू इंज किया, फिर खूब लड़ाई झगड़ा करने, फिर लड़ाई झगड़ा करके मैनू हुण नफरत हो गई एक दूसरे को। वो हर बड़ी इंजी करता है, इंजी करती तो पहले माफ करके दे, अगो फिर तो पुराने फिर याद करना। ये चीजें छोड़ दें अपनी जिंदगी से, इनको निकालें, फिर आप कामयाब होंगे। और आप फिर क्या हो? आपको कैसे? वो आपको रात बाद खुदा ठहरा चुका है और अब खुदा हमें ऐसे देखता है गोया हमने कभी गुनाह नहीं किया। खुदा हमें ऐसे ही देखता है कि जैसे जब हमने इकरार कर लिया है, ईमान रख लिया, अपने आप को ऐसे देखे मैंने कभी गुनाह नहीं किया, जैसे हमने वादा पड़ा कि वो कभी गुनाह नहीं कर सकता। जो खुदा से खुदा हुआ वो गुनाह, और खुदा इसी तरह से हमें देखता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। फिर खुदा का रूह आप मेरे और आपके अंदर आएगा। इन 4 पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में रखें। हाँ जी, पहला पॉइंट कौन था? जरूर है कि हम अपने गुनाहों पर गम करें। दूसरा पॉइंट क्या है? जरूर है कि हम अपने गुनाहों का खुदा के सामने इकरार करें। तीसरा पॉइंट क्या है? जरूर है कि हम अपने गुनाहों को तर्क करें। और चौथा पॉइंट क्या है? जरूर है कि हम गुनाहों की माफी मांग कर खुदा पर भरोसा रखें। कलाम हक का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाहिश बरकत हो। खुदा सब आसमान की तरफ